In this video, we are going to discuss the chapter of physical education and sports for children with special needs. In this chapter, we are going to discuss the concept of disability and disorder. Then we will look upon the different types of disability, its causes and the nature, जिसमें बेसिकली हम लोग कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी को स्टडी करेंगे. Then we see the different type of disorder, its causes and the nature, which will include ADHD, SPD, ASD, ODD and OCD. इन सभी के बारे में हम लोग during the chapter we discuss in details. Then we'll see what are the different disability etiquettes, and then we'll see the strategies or the ways by which we can include such individual or such children in physical activities or in the physical education classes. To begin with, let's see the and understand the concept of disability and disorder. See, disability इसको split करेंगे इस term को. So disability is a disability means not abled. यानी so disability क्या कहता है कि it is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental or physical in nature. So any limitation in your cognitive process, your learning process, any limitation in your developmental process, any limitation in your intellectual process, any limitation in your mental process, or any limitation in your physical domain or process is known as the disability. Non-ability to function in these dimensions in a proper manner is known as the disability. It can either inborn or it can occur during one's lifetime. हो सकता है कि कुछ डिसेबिलिटीज आपके इनबॉर्न भी हो या हो सकता है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम किसी इवेंट की वजह से आप में वो डिसेबिलिटी आए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका जन्म से ही लेग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है. सो दैट इज हिज और हर इनबॉर्न डिसेबिलिटी. और हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल का ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर कट जाए या काटना पड़े. इन सच कंडीशन जो है दैट इज द डिसेबिलिटी व्हिच इज ऑकर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. वो इनबॉर्न नहीं था लेकिन बाद में किसी इवेंट की वजह से उसको डिसेबिलिटी हो गया. सो इट कैन आइदर बी इनबॉर्न और इट कैन बी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. सो WHO ने कैसे इसको डिफाइन किया? WHO has defined disability as it is a restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. यानी disability is a restriction और lack of ability यानी वो limitation जिसके वजह से कोई एक इंडिविजुअल वो सभी काम नहीं कर पा रहा है जो कि अदरवाइज एक ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल कंसिडर किया जाता है. मान लीजिए दौड़ना, रनिंग इज द नॉर्मल एक्टिविटी फॉर एनी इंडिविजुअल, लेकिन जिसके पैर प्रॉपर फॉर्म नहीं हुए हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से जिसका पैर चला गया हो, पैर नहीं है, वो इजीली नहीं दौड़ पाएगा. सो इट इज अ लिमिटेशन फॉर हिम और हर टू रन, which otherwise running is a normal activity for any human being, right? So such things are known as the disability. Okay, there is a limitations in your functional aspect. Then comes the disorder. disorder क्या कहता है कि disorder यानी चीजें है लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं है. जैसे आपके लेग्स है लेकिन लेग्स बिल्कुल फॉर्म सही से है लेकिन वो सही तरीके से लेग्स काम नहीं कर रहे. ठीक है. So disorder create hindrance in an individual's performance and reduce his efficiency. Basically एक बैरियर है जिसके वजह से आप प्रॉपर फुल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे. और क्या है, इट में एनहांस विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो डिसऑर्डर का जो मात्रा है, जो आपका जो हिंड्रेंस हो सकता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम्स ये हिंड्रेंस बढ़ता जाए. इनिशियली अगर जब आपका कोई डिसऑर्डर शुरू हुआ है,
हो सकता है कि वो इतना सीवियर नहीं हो, लेकिन विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको डील नहीं किया गया, हो सकता है बाद में वो और भी बढ़ जाए. Okay, and it might lead to a disability. Sometimes disorder can convert into disability if they are not treated properly. और ये जो डिसऑर्डर शब्द है ये बेसिकली मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं. अगर जब आप आगे चल के इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को डिसऑर्डर्स को आप पढ़ेंगे, दैट टाइम विल सी कि ऑल द डिसऑर्डर्स आर बेसिकली मेंटल इन नेचर और दे रिलेटेड टू देयर ब्रेन फंक्शन. सो शॉर्ट में क्या कहते हैं, इट्स ऑफन डिफाइंड एज अ ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ ए पर्सन. यानी आप नॉर्मल फंक्शन कर रहा है लेकिन अचानक कोई एक हिंड्रेंस आ जाए, कोई एक छोटा सा ब्लिप आ जाए, such things are defined as a disorder. Okay. So this is the basic concept of disability and disorder. Now we see the different forms of disability. First is the cognitive disability. So as we have discussed, that cognitive ability means your ability to learn. कोई भी चीज सीखने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको कॉग्निटिव प्रोसेस. जब आपके लर्निंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कमियां आती है, such thing is known as the cognitive disability. So it is a neurological disorder that creates hindrance or obstruction for the individual to store, process and produce information. ये क्या होता है कि जो हमारी ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारे एक इनपुट टर्मिनल की तरह काम करता है. यहाँ से सभी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं एंड इट थ्रू द नर्व्स इट गोज टू द ब्रेन. ब्रेन में जाने के बाद वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है. देन ब्रेन टेक डिसीजन कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है एंड अकॉर्डिंगली ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जैसे कि अभी आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं एंड सुन रहे हैं. सो योर आईज आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन टू स्टोर इट. Similarly, your ears are also listening the words and sending the information to your brain to store it. लेकिन इस प्रोसेस में अगर कोई कमियां आ जाए, हो सकता है कि उस प्रोसेस में या उस जो कंपोनेंट्स जो इस इन्वॉल्व इस प्रोसेस में, उसमें अगर कोई लिमिटेशंस आ जाए जिसके वजह से ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपकी ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहे, या सही तरीके से चीज़ों को आप रीड नहीं कर पा रहे, आपका माइंड इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को बता नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, इस तरह के जो आपकी लिमिटेशंस हैं, दे comes under the cognitive disability. All limitations relating to your learning process, जैसे कि रीडिंग, कंप्यूटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सभी जो है आपकी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इन सभी प्रोसेस में जो भी कमियां हैं, दे आर नोन एज द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. ठीक है, सर एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसे आप हो सकता है मेमोरी डिसऑर्डर. आपने जैसे गजनी मूवी देखा होगा कि short term memory loss, so that is also a cognitive disability. यानी इंस्टेंट जो चीजें होता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टोर नहीं कर पा रहा है. हाइपर एक्टिविटी, आप बहुत ज्यादा, जब कहते हैं बहुत चंचल होता है, यानी आप एक जगह पे कॉन्स्टेंटली बैठ नहीं पाते, आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. सो सच पीपल आर हैविंग वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन. थोड़ा सा 2 मिनट कुछ चीज को सुना, तुरंत कहीं और जाके बैठेगा, कहीं और मूव करेगा, तो एक जगह पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्स्टेंटली वो बैठ नहीं पाते हैं. दे फील डिफिकल्टी इन हैविंग अ लॉन्ग अटेंशन स्पैन एंड डिफिकल्टी इन स्टेइंग एट वन प्लेस. देन डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. आपने जो मूवी देखी तारे ज़मीं पे, दैट मूवी इज रिलेटेड टू दिस डिसलेक्सिया. तो आपने देखा होगा जो बच्चा था उसमें, ही वॉज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स प्रॉपरली. बोर्ड में टीचर लिख रहा है सही से, लेकिन बाकी बच्चों का ब्रेन जिस तरीके से वर्ड को प्रोसेस कर रहा है, जिस तरीके से वर्ड को कैप्चर करके उसके ब्रेन तक पहुंचा रहा है कि दिस ए इज ए, जिस बच्चे को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है वो ए को सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है.
उसको स्पेलिंग कुछ और दिख रहा है या फिर जो फॉर्मेशन से कुछ और तरीके से दिख रहा है वो, तो उसका ब्रेन में भी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, देन वो बच्चा ना सही से सीख पाएगा, ना सही से लिख पाएगा, ना सही से बोल पाएगा। So these are the some of the examples of cognitive disability. Then comes the intellectual disability. So intellectual disability क्या है? This is a limitation in intellectual functioning, that is reasoning, learning and problem solving. यहाँ पे क्या होता है कि आपका ब्रेन ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है, कुछ प्रॉब्लम दिया गया आपको, उसका आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इवन दे हैव लिमिटेशंस इन एडेप्टिव बिहेवियर, देयर इमोशंस एंड थिंकिंग, किस जगह पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इमोशंस को शो करना है, दे आर नॉट एबल टू do that properly. Such limitations are known as the intellectual disability. Then comes the physical disability. So physical word से we are very much get assured. यहाँ पे जो भी आपके organs है, physical organs है, उसमें proper functioning नहीं होता. There is a limitation in individuals' physical functioning, mobility, dexterity और stamina. यानी आप प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहे, सही से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं. डेक्सटेरिटी मीन्स योर फिंगर मूवमेंट्स, आपके जो फिंगर्स है वो सही तरीके से प्रिसाइजली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या काफ़ी देर तक आप सही से काम नहीं कर पा रहे. ऑल दोस कम्स अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी. दे ऑल्सो इंक्लूड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी एंड स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है. अभी कभी कभी बीच बीच में डिसऑर्डर्स वर्ड का भी यूज किया जाता है. तो जैसे हम डिस्कस किया था, disorders might lead to disability, or you can say disability is a higher degree of disorder. अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी नींद में चलने की बीमारी, ठीक है, हो सकता है उसके लिए उसके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. तो क्या हुआ, उसके इस डिसऑर्डर के वजह से उसका जो प्रॉपर मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया. कोई ब्लाइंड है, वो देख नहीं पा रहा, जिस कारण से भी आपका जो प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आइज के थ्रू हमारे अंदर जाता है वो इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है, जिस कारण से आप प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहे. देन इट माइट बी ऑफ मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पेयरमेंट. हो सकता है कि आपके मसल में कुछ कमी है, मसल में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, मसल फाइबर्स जो आपके हैं वो सही से फॉर्म नहीं हुए हैं, जिस कारण से आपके मूवमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं है, या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि आपके सेंस ऑर्गन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज को सही से देख नहीं पा रहे हैं, सिग्नल्स को आप सुन नहीं पा रहे हैं. तो दैट माइट ऑल्सो लीड टू सेंसरी इम्पेयरमेंट, एंड जिसके वजह से हो सकता है कि आपकी मूवमेंट्स जो है, फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो लिमिट हो जाए. ठीक है. Now let us see what are the various causes of disability. First cause is the genetic cause. हो सकता है कि आपके जीन्स प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुए हैं, या जीन्स में कुछ मेल फंक्शन हुई हो, जिस कारण से आपकी काफ़ी सारे मूवमेंट्स restricted हो गया हो. And so your genes can be one of the cause of disability. Then poverty और malnutrition. हो सकता है कि ड्यू टू पॉवर्टी आप प्रॉपर तरीके से डाइट आपको बचपन में नहीं मिला है,
एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स आपके बॉडी में सर्टेन डिफिशियंसीज क्रिएट हो गया हो, एंड बिकॉज ऑफ विच आपके ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए हैं, which again might lead to certain limitations in your proper functioning. So poverty and malnutrition in this way can lead to disability. Then your mental health. हो सकता है कि आपकी फैमिली कंडीशन, फैमिली एनवायरनमेंट या आपकी नेबरहुड कंडीशन प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से यू आर नॉट मेंटली वेरी हेल्दी। मान लीजिए आप एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए जहां अक्सर जंग होता है, अक्सर लड़ाई होती है। इन दिस सिचुएशंस योर मेंटल कंडीशंस विल नॉट बी प्रॉपर। जब आपकी मेंटल कंडीशन प्रॉपर नहीं होगा, देन इट विल हैम्पर योर प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, एंड हो सकता है कि काफ़ी सारे कॉग्निटिव एंड मेंटल डिसेबिलिटीज जो है आपके अंदर आ जाए। देन एक्सीडेंट्स। अभी तक आप बिल्कुल सही चल रहे थे या कोई भी बिल्कुल सही था, अचानक कोई एक्सीडेंट की वजह से उसके कोई एक बॉडी पार्ट्स को रिमूव करना पड़ा या टूट गया है, उसको रिमूव करना पड़ा। सो दैट विल अगेन कॉज डिसेबिलिटी। सिमिलरली infectious diseases and illness like paralysis. So some individual might be proper to some extent. सडनली उसको अगर पैरालिसिस अटैक होता है, उसके बॉडी के या तो हाफ या फुल पार्ट जो है वो काम नहीं करते। दे आर अलाइव बट their physical movements are restricted. So this is again come under the disability. Poor access to health care. हो सकता है आपको कोई बीमारी हुई हो, लेकिन आपको प्रॉपर हेल्थ केयर सही टाइम पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली है, एंड जिसके कारण से वो एग्रेवेट हो गया हो और आपके सर्टेन बॉडी पार्ट्स को वहां से रिमूव करना पड़े। एक छोटी सी इंसिडेंट मान लीजिए, एक छोटा सा किसी जंग लगा हुआ आयरन से किसी का पैर कट गया। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत उसको घाव हो पसजर में। अगर उसने सही टाइम पे डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई आ गई, एंटीबायोटिक्स पड़ गए, उसको प्रॉपर बैंडेजिंग किया गया, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन सर्टेन इंडिविजुअल मान लीजिए उसको कोई ऐसा हेल्थ केयर नहीं मिला, प्रॉपर केयर नहीं मिला, हो सकता है कि वो इन्फेक्शंस बढ़ के पूरे पैर में फैल जाए और जिसके वजह से उसके पूरा पैर को ही हो सकता है काटना पड़े। आपने काफी बार देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो स्नो एरियाज में जाते हैं माउंटेनियरिंग करने, ड्यू टू हाई कोल्ड वेरी कोल्ड टेम्परेचर, उनके पैर में फ्रोजन बाइट्स हो जाते हैं, पैर वहां से गलने लगते हैं उनके ड्यू टू वेरी सीवियर कोल्ड। और जब वो आके बेस में आके पैर को खोलते थे तो कभी ऐसा पाया गया है कि दे आर नॉट अगेन फिट फॉर द क्लाइंबिंग। हो सकता है उनके कुछ फिंगर्स काटने पड़े हैं, किसी के फीट काटने पड़े हैं, किसी के नीज तक काटने पड़े हैं, to prevent the further aggravation of that infection. तो इस तरीके से poor healthcare or not access to the healthcare can also lead to disabilities. Then the nuclear accidents. Whenever there is some nuclear accident or nuclear blast or nuclear reactions जब भी emit होता है, it emits radiations. बहुत harmful radiation ऐसे reaction या accident से निकलते हैं, जो रेडिएशंस आपके जीन्स में क्रोमोसोम से मॉडिफाई कर देगा और बहुत से ऐसे आपको क्रिपल्ड कर सकता है, नॉट फॉर यू, इवन फॉर जनरेशंस। सो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कैन आल्सो अ कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। देन वर्स, जब भी जंग होता है, then there are lots of blasts, bomb blasts that takes place, the attacks are missile attacks होते हैं या आपके गोलियां चलती है। हो सकता है कि ऐसे किसी फॉरेन पार्टिकल से इंजर्ड होके आपका कोई ऑर्गन जो है वो डिसेबल्ड हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। कभी कभी बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं, बहुत से वर्किंग प्लेस होते हैं जहाँ पे काम करना काफ़ी डेंजरस होता है। मान लीजिए जो माइन वर्कर्स होते हैं, जो एक डायनामाइट फिट कर रहा है, डायनामाइट फिटिंग के टाइम पे अचानक ब्लास्ट कर गया,
और उसमें उसका हाथ चला गया या पैर चला गया, so that might lead to disability. So these are 9 listed causes of disability. Genetic, it can be from poverty, malnutrition, it can be from mental health, it can be from accidents, it can be from infectious diseases or illness, it can be from poor access to healthcare, from nuclear accident, wars to dangerous working environment. Now we'll see some of the disorders. Okay. The first disorder is the ADHD, means attention deficit hyperactivity disorder. So this is a group of behavioral symptoms including inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness. So क्या करें, attention deficit hyperactivity disorder, यानी these people are the attention seekers. To gain attention, they exhibit certain kind of behavior, and those behavior generally hyperactive in nature. इसलिए इस पूरे डिसऑर्डर का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बेसिकली. सो एडल्ट्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एंजाइटी अटैक्स, अचानक बीच बीच में उनको कोई चीज से भयंकर डर लगता है उनको, ठीक है. इम्पल्सिव एंड प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी चीज में, और अपने गुस्से को वो जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता. ऐसा एक बार हो रहा तो अलग चीज है, लेकिन कोई भी सिचुएशन होता है और सडनली अगर आप गुस्सा होते हैं और आप आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन इट माइट बी अ सिम्टम ऑफ ADHD. देन लो सेल्फ एस्टीम, फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन. सेल्फ एस्टीम मतलब आप खुद को कितना एस्टिमेट करते हैं, तो आप खुद की क्या वैल्यू है आपके सामने. तो सच पीपल हैज वेरी लो सेल्फ एस्टीम, वो खुद की वैल्यू नहीं करते, खुद को बहुत वो नकारा समझते हैं, ठीक है. दे थिंक दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी. दे इजीली गेट फ्रस्ट्रेटेड, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड कर देता है. काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं, अभी कोई चीज़ उनको अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वो गुस्सा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो अच्छे से बिहेव करेगा. एंड दे ऑफन फील्स डिप्रेशन. इन सभी चीज़ों की वजह से दे माइट गो इनटू डिप्रेशन, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं. देन दे रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड, सिंस उनके मेंटल स्टेटस सही नहीं है, सो दे ऑफन रिमेन्स अनऑर्गेनाइज्ड. कोई चीज़ों को प्रॉपर सही से रखते नहीं है, ठीक है. जो चीज़ जहाँ पे रखना है वो नहीं रखेंगे, ठीक है. कोई भी चीज़ कहीं भी फेंक देंगे, ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स व्हिच आर विजिबल इन द एडल्ट्स, एंड दिस कैन बी द सिम्टम्स ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर. बच्चों में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? लाइक फॉरगेटिंग डेली एक्टिविटीज, ठीक है. डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज, indulging in daydreaming, easily distracted, excessive talking and makes careless mistake. जो उनके डेली एक्टिविटीज़ है, उसको मान लीजिए स्कूल जाना है, स्कूल जाके कहाँ पे किस क्लास में कहाँ बैठना है, ठीक है, वो चीज़ें वो याद नहीं रख पा रहा है, कहीं जाकर उधर बैठ जाता है, कभी किसी क्लास में बैठ जाता है, ठीक है. जो उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ है कि उनको किताब कौन आज क्लास में कौन कौन सी किताब लेके जाने हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते वो. ऑफन दे आर इंडल्जिंग डे ड्रीमिंग, ठीक है. सिर्फ वो ख्वाब देखने लगते हैं बैठे बैठे कि मैं तो ये बन गया, मैं वो बन गया, ठीक है. सो प्रैक्टिकल में वो वर्कआउट नहीं करते हैं, बट दे स्टार्ट डे ड्रीमिंग. दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है. अचानक मान लीजिए कि स्टडी कर रहे हैं, बाहर अगर थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ आ गया तुरंत उनका ध्यान बाहर चला जाएगा. दे विल बी एक्सेसिव टॉकेटिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा वो बात करेंगे. एंड दे विल मेक केयरलेस मिस्टेक्स, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो करेंगे, जो अदरवाइज आप नहीं करेंगे, कोई इंडिविजुअल नहीं करता है, कोई बच्चा नहीं करता है, ऐसे केयरलेस मिस्टेक्स वो करेंगे. Some of the causes of ADHD is the genetic factor. हो सकता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो, सो दैट जेनेटिक malformation की वजह से उस बच्चे में भी ADHD हो सकता है. ब्रेन इंजरी, अगर बचपन में या कभी भी ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस अगर ब्रेन में किसी चोट लगता है,
तो दैट मे आल्सो कॉज ADHD. लो बर्थ वेट, जिन बच्चों का जन्म के टाइम पे वजन काफी कम होता है, they are often shown the symptoms of ADHD. Then lack of discipline in the family. कहते हैं कि जो या तो फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर आपका लिबरल है या बहुत ज़्यादा अगर आपका फैमिली स्ट्रिक्ट है, ठीक है, दोनों कंडीशन में सच बिहेवियर इज ऑफन shown by the children. ठीक है, अगर फैमिली प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, अगर फैमिली का आपका एटमोसफियर सही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी ADHD हो सकता है. आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपके अंदर चला गया हो जिसके वजह से ब्रेन में कोई अगर मेल फंक्शनिंग हो गया है, उसके वजह से भी आपके अंदर ADHD हो सकता है. दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. Then comes the SPD, the sensory processing disorder. So it is the condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information that comes in through the senses. As we have discussed, जो हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे इनपुट टर्मिनल की तरह काम करते हैं एंड ब्रेन को उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है और वो जाता है आपकी ब्रेन में, वहां से प्रोसेस होकर डाटा, उसके बाद जो एक्शंस नीड रिक्वायर्ड होते हैं वो ब्रेन इन्फॉर्म करता है ऑर्गन्स को परफॉर्म करने के लिए. सो इट इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन. यानी जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन कलेक्ट किया है ब्रेन तक वो सही से पहुंच नहीं पा रहा है और ब्रेन उसको सही से प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा. आपके पास आप मान लीजिए चल के जा रहे हैं, अचानक कोई बॉल साइड में कोई बच्चे खेल रहे हैं और गलती से बॉल आपकी तरफ आ गया, आप अचानक मूव कर जाएंगे टू सेव योरसेल्फ. लेकिन जिसका सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं है, वो उसका ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि उस टाइम पे करना क्या है. हो सकता है उस बॉल से चोट लगे उस इंडिविजुअल को. ठीक है, दिस में इफेक्ट इवन द सेंस ऑफ टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट. आप टच करेंगे तो प्रॉपर फीलिंग नहीं आएगा, हो सकता है आपकी आईसाइट में कमी आ जाए, आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो प्रॉपर टेस्ट नहीं लग रहा है आपको, एंड ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस हो सकता है आपकी मूवमेंट जो है वो भी सही ना हो. मे रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट अराउंड हिम. इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन उस तक प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा उसका ब्रेन, जिसकी वजह से हो सकता है इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी एक्शन से उनमें वो रिस्पॉन्ड नहीं करे. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि जो बॉल अचानक खेलते हुए बच्चों से साइड से आया, दैट वाज फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ठीक है, लेकिन उस लिमिटेशन के वजह से, उस डिसऑर्डर के वजह से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया. सो दैट्स व्हाई said कि such individual remain unresponsive to the environment around him. What are the causes of ADHD? Again, genetic factors is one of the cause. Low birth weight is also a cause. Environmental factors, हो सकता है कि environmental किसी कारण से आपकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं. कभी कभी अचानक हम लोग गिरते हैं, अगर बैक के बल हम लोग गिरे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लगता है तो हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाए और जिससे आपको SPD हो सकता है. देन देयर कैन बी फिजिकल कॉज. ठीक है, हो सकता है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या आंखों में चोट लग जाए, या फिर आपके टंग में कोई चोट लग जाए, जिसके कारण से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा. जब आपके इनपुट डिवाइस ही खराब होगा, ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर आपका जो प्रोसेसिंग होगा ब्रेन में वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए. सो दिस आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ SPD. So one thing is written wrong here. This is ADHD. So this will be the causes of SPD. Okay. Then is the ASD. That is the Autism Spectrum Disorder. Spectrum मतलब is a range of disorder. ठीक है. It is a kind of disorder that affects development.
So autism is basically disorders that takes place in your developmental process. यानी प्रॉपर तरीके से आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. सो स्पेक्ट्रम refers to a range of symptoms and their severity. इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है एंड डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉडर एस्पेक्ट. सो इसमें काफ़ी तरह के सिम्टम्स विजिबल होता है और सिवियरिटी भी अलग अलग हो सकता है. इंडिविजुअल्स विथ ऑटिज्म spectrum disorder faces difficulties in communication, language, social skill and behavior. जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है often they find difficult in communication. लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, इन चीज़ों पे वो डिफिकल्ट फेस करते हैं. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ASD. कहा जाता है कि इवन द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन was also suffering from autism. उनको भी autism था. ठीक. Now some of the causes of autism is the genetic factor. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी का ऑटिज्म है तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे में भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो. इन्वायरमेंटल फैक्टर, हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट इतना फेवरेबल नहीं हो, ठीक है, जिसके कारण से आप ये सभी डिफिकल्टीज फेस कर सके, जिसमें आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाए आपकी ब्रेन की. एंड देन इज द ब्रेन डेवलपमेंट. नाउ अगर आपकी ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं करता है, दैट अगेन कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर. हो सकता है आपकी प्रॉपर डाइट की वजह से ना हो, आपकी प्रॉपर ब्रेन फॉर्मेशन की वजह से ना हो, लो बर्थ वेट की वजह से हो सकता है. बिकॉज एनी ऑफ द फैक्टर, अगर आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, that will hamper your developmental process and that might lead to autism. So genetic factor, environmental factor and your brain development, some of the important causes of ASD, that is autism spectrum disorder. Then is the disorder called OCD. This is obsessive compulsive disorder. It is a situation when an individual gets caught in a cycle of obsession and compulsion. यानी अब बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, जिसके वजह से वो कोई एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं. काफ़ी सारे घर में काफ़ी सारे लेडीज होते हैं जो दिन में 10 बार घर की सफाई करेंगे. सो दे आर ऑब्सेस्ड विद द क्लीननेस. थोड़ा सा भी कहीं पे धूल लगेगा तो फिर से वो झाड़ू लगाएंगे. एंड दिस जो ये बार बार ये झाड़ू लगा रहे हैं, ऑब्सेशन इज विद द क्लीनलीनेस एंड टू कीप द हाउस क्लीन. वो बार बार जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बार बार झाड़ू लगा रही है, दैट इज द कंपल्सन. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर. सो यू आर ऑब्सेसिव विद समथिंग and because of which you are showing a compulsive behavior. So it's called obsessive compulsive disorder. So this cause repeated unwanted thoughts. हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी ऐसे रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स जो हालांकि आपको नहीं आने चाहिए वो आ रहा है. कोई भी अगर पास वॉस लगा कि उसके पैर के थ्रू जम्स आ गया है या डर्ट अंदर आ गया है, वो तुरंत जाके झाड़ू लगाएंगे. ठीक है. And they are plagued by the constant thought of fear that causes them perform certain rituals or routines. उनके डर होता है चीज़ों का. Even during this pandemic, it was seen that many of the individuals they get this type of disorder. जिनको पहले OCD नहीं था, they were also suffering from OCD because of all this television news, because of all these events in their neighborhood. They had got a fear कि हो सकता है कि किसी चीज़ के थ्रू वायरस उसके घर में अंदर आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच बार बार वो हर चीज़ को सैनिटाइज करता है, हर चीज़ को बार बार दिन में 10 बार हाथों को सैनिटाइज कर रहा है. कुछ भी चीज़ आ रहा है तो अच्छी तरीके से उसको सैनिटाइज करके तब अंदर लेके आ रहा है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम फियर ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन. लाइक सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लाइक फियर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जम्स, जैसे भी हम लोग डिस्कस किया कोविड के बारे में.
टू परफॉर्म थिंग्स परफेक्टली और करेक्टली। कुछ लोग होता है जब तक चीजें परफेक्ट नहीं हो तो बार बार उस चीज को करेगा वो, ठीक है। देन एक्सेसिव डाउट ऑन इंडिविजुअल, हो सकता है किसी पे बहुत ज्यादा डाउट्स है और उसके वजह से कोई एक क्वेश्चन या कोई एक ऑब्जर्वेशन वो बार बार उस आदमी के बारे में कर रहा है। देन फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, बीइंग डर्टी, ऐसे ऐसे काफी सारे चीजों के बारे में आप ऑब्सेस हो सकते हैं। और इसके वजह से आप क्या करते हैं, यू डू रिपीटेड थिंग्स, bathing or washing hands several times, checking things over and again। आजकल के सोशल मीडिया की वजह से जो सोशल एप्स आपके मोबाइल में रहते हैं, जिसमें से एक नई तरीके का एक ओसीडी देखा गया है कि द फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। जो नोटिफिकेशन आपके फोन में होते हैं, बार बार जो नोटिफिकेशन आते हैं, दैट क्रिएट्स समटाइम्स कैन क्रिएट ओसीडी। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो बार बार फोन को चेक करेंगे, कहीं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हो गया है, कैसा नहीं क्योंकि किसी ने मेरा फोटो लाइक किया और मैंने देखा नहीं है उसको, या किसी ने मेरे फोटो में कुछ कमेंट किया मैंने उसको रिप्लाई नहीं कर पाया। सो दिस कैन ऑल्सो कॉज ओसीडी। देन होर्डिंग, होर्डिंग मीन्स चीज़ों को जमा करना। हो सकता है आप बाहर थोड़ा सा भी सिचुएशन नॉर्मल से डेविएट करे, आपको लगता है, उसको लगता होगा कि अभी तो सारा मार्केट बंद हो जाएगा, अभी फिर लॉकडाउन हो जाएगा, एक काम करते हैं सभी चीज़ें जमा कर लेते हैं। वो जाएगा बाजार और जो चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ें खरीद के ले आके अपने घर में जमा कर लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉकडाउन। देन द कॉन्स्टेंट प्रेइंग। हो सकता है किसी इवेंट के बारे में उसके मन में ऐसा डर बैठ गया जिसके वजह से 24 घंटा या जब भी जगा हुआ है वो कॉन्स्टेंटली प्रे ही कर रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ सम फियर दिस इज द एक्शन विच इज हैपनिंग। So this disorder is known as the OCD, obsessive compulsive disorder, and some of the causes are specific causes is specific causes are still unknown and insufficient serotonin. So the specific cause of OCD is still unknown. What is causing this OCD? However, some scientists have found that insufficient serotonin, serotonin is basically a hormone, अगर आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन अगर प्रॉपर नहीं है, दैट माइट कॉज ओसीडी। अगेन जस्ट अ करेक्शन हियर, कॉजेस ऑफ ऑटिज्म नहीं होगा यहाँ पे, दिस विल बी द कॉजेस ऑफ ओसीडी। देन विल सी द डिफरेंट डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी अगर हमारे सामने कोई डिसेबल्ड इंडिविजुअल हमें मिले तो हाउ वी शुड बिहेव विद देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी must call this individual as children or individual with special need। अगर हम इन इंडिविजुअल्स को किसी को रेफर कर रहे हैं, we must not say this is a he is a disabled person, we can say he is an individual with special need, और हिंदी में हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, ओके। सो एटिकेट सेज कि we must always put them first। अगर मान लीजिए आप कहीं लाइन में लगे हैं और कोई इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड वहाँ पे खड़े हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू पुट देम फर्स्ट, उनको पहले आप मौका दीजिए, देन यू टेक द ऑप्शन। शेक हैंड व्हाइल इंट्रोडक्शन, अगर वो बंदा हैंडशेक कर सकता है तो ऑलवेज शेक हैंड विथ हिम। दिस विल गिव अ पर्सनल कनेक्शन एंड ही और सी विल फील कि ही इज ऑल्सो इक्वल एंड यू आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम हिम। ऐसा नहीं कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं, आप भी, वो भी आपके एक समाज का एक हिस्सा है। So this will handshake will give that feeling। अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है किसी का, अगर विजुअल लिमिटेशंस है, तो जब भी आप उनसे बात करते हैं आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आपके साथ कोई खड़ा है उनको भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि अभी मेरे सामने या आपके सामने अभी सो एंड सो बंदा खड़े हैं। एंड इन्फॉर्म व्हेन लिविंग, ऐसे इंडिविजुअल के सामने से अगर आप उनके साथ बैठे हैं, मान लीजिए भले बात नहीं कर रहे, आप बैठे हैं, लेकिन अगर आप उठ के जा रहे हैं तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप जा रहे हैं, सो दैट he or she might know such person has left this area। Listen carefully and attentively to them।
अगर ऐसा इंडिविजुअल आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो काइंडली पे अटेंशन टू देयर वर्ड्स एंड लिसन केयरफुली. यूज विजुअल सिग्नल्स फॉर इंडिविजुअल्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स. अगर किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उनको विजुअल सिग्नल्स दीजिए. लेट्स से कि वी आर गोइंग, जस्ट से शेक योर हैंड, से बाय बाय. बाय बाय का आप सिग्नल दे दीजिए कि आई एम लिविंग. उनको अगर आप वर्बली कहेंगे कि आई एम लिविंग, दे माइट नॉट एबल टू गेट योर पॉइंट. अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू डिसेबिलिटी. ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड कीजिए कि आपको कैसे हो गया, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है आपको. ठीक है, ऑल सच क्वेश्चंस प्लीज ट्राई टू अवॉइड. एंड अवॉइड स्पीकिंग इन हाई पिच. ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा आप एम्पैथी के साथ बात करें. दे डोंट नीड सिंपैथी बट दे नीड्स एम्पैथी. उनकी जगह को समझ के, उनके प्रॉब्लम को समझ के आप उनसे बात कीजिए. और जब भी बात कीजिएगा आपका जो वॉइस का टोन है दैट शुड बी लो. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको डरा रहे, धमका रहे, या फिर उनको दबाने की कोशिश कर. स्पीक इन अ वेरी polite and low pitch voice and try to empathize with them. Okay, so these are some of the disability etiquettes. Then come the strategies to include children with special needs in physical activities. तो क्या तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे बच्चों को नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट वी मस्ट हैव देयर मेडिकल चेकअप. क्यों? वी मस्ट नो द रेंज ऑफ देयर डिसेबिलिटी, कि उनका सिवियरिटी क्या है. मान लीजिए ब्लाइंडनेस है, उसका भी एक सिवियरिटी है कि कितने हद तक वो ब्लाइंड है. 80%, 70%, 100%. वी मस्ट नो द रेंज ऑफ इट, तभी हम उनके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम डिजाइन कर पाएंगे. देन इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज. ऐसे एक्टिविटीज करना होगा उनके साथ जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके. केवल उनको इंक्लूड करना है, उसके वजह से उनको एक्टिविटीज नहीं करानी है, बल्कि ऐसे एक्टिविटीज जिसको करने से उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो. तो ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज उनके लिए इंक्लूड करना है हमारे एक्टिविटीज के अंदर. देन सुइटेबल इक्विपमेंट, ये बहुत जरूरी है. हम उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो एक नॉर्मल प्लेयर जैसा है. तो हो सकता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. ये करेगा तो डिफिकल्टी होगा, तो फिर अगर डिफिकल्टी महसूस होगा तो वो छोड़ देगा. जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में बॉल का साइज बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी है जिससे उसके अंदर से एक हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है, सो दैट द बैट्समैन कैन आइडेंटिफाई वेयर द बॉल इज. अगर नॉर्मल हार्ड बॉल, जिस जो ड्यूस बॉल से खेलते हैं नॉर्मल प्लेयर्स, अगर वही बॉल से इनको भी खेलने दिया जाए तो दे विल गेट हर्ट. एक बार दो बार चोट लगने के बाद दे विल लूज इंटरेस्ट एंड दे विल नॉट कम फॉर द फिजिकल एक्टिविटी. सो उनके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होना भी जरूरी. देन इज द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. जो आसपास का तरीका है वो भी उनके लिए प्रॉपर बनाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, आप देखिएगा आपके स्कूल में भी बहुत से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऐसे है जो लो लेवल पे लगा हुआ है. दे आर स्पेशली फॉर दिस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. मान लीजिए कोई व्हील चेयर पे बैठा है, अब वो तो खड़ा होकर पानी पी नहीं पाएगा. तो अगर ऐसा कंडीशन है जहाँ पे अगर उसको मूवमेंट में डिफिकल्टी फेस हो रहा है, तो ही एंड सी विल अवॉइड सच प्लेसेस. सो वी मस्ट मेक द एनवायरनमेंट सुइटेबल फॉर देम. ओके. देन कम्स द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज. हो सकता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम ना आए. आपने सोच के गया कि मैं चलिए इनको एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गया, इनसे मैं दिखा दूंगा, हो जाएगा. हो सकता है कि प्रेजेंटेशन को दिखाने से उनको समझ में नहीं आए, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको डेमोस्ट्रेशन दे के उनको दिखाना पड़े या कुछ मॉडल बना के दिखाना पड़े. So you have to follow different instructional strategies, different instructional ways to make a certain thing understand to them. And then is the modification of rules. जब भी हम उनको फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे तो वी मस्ट मॉडिफाई द रूल्स.
मान लीजिए कि आपके क्लास में एक कोई बच्चा है जो स्पेशल नीड्स से है। अब नॉर्मल कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, लेट्स से कि he or she is physically he has some physical limitations, वो व्हील चेयर पे स्कूल आता है ना। उसको अगर हम क्लास के अंदर बाकी बस इंक्लूड करेंगे और नॉर्मल गेम चल रहा है, रूल्स भी सेम ही है, तो कोई भी उसको बॉल पास नहीं करेगा, बॉल नहीं देगा। जैसे कि वे प्लेइंग वॉलीबॉल, तो बोलेगा कि भाई तुम्हें खेलना ही नहीं आएगा, तुम क्या करो, तुम बाहर बैठो। बट टू इंक्लूड देम इफ वी चेंज द रूल कि चलिए एवरी टीम, और जिस टीम में भी वो है, एटलीस्ट 3 ऑफ द सर्व शुड बी मेड बाय हिम और हर। तो क्या होगा कि he and she will be included in the same game। थोड़ा सा हमने रूल्स को मॉडिफाई कर दिया, which otherwise not compulsion to give certain one the service, लेकिन वहाँ में थोड़ा सा हमने रूल को मॉडिफाई किया कि नहीं, every alternate service or at least out of 10 service 3 service should be given to him, तभी जो है आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा रूल्स को मॉडिफाई करने की वजह से दैट इंडिविजुअल गॉट इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अब रूल अपना ये बना दिया कि गोल तभी होगा जब उस इंडिविजुअल के पास एक बार बॉल पास होगा। ठीक है, जिस भी टीम से वो खेल रहा है, जब तक उस बच्चे के पास एक बार भी बॉल पास नहीं होगा तब तक बास्केट जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली बाकी सभी बैच जो प्लेयर्स है वो उनको एक बार बॉल पास करेगा। तो अगेन ही एंड सी विल बी got included in the normal game scenario. So these were some of the strategies by which we can include the person or the children with special need in the physical activity classes. So in this session, we have seen what are different what are the concept of disability and disorder, what are different types of disabilities, different types of disorders, then the disability etiquettes and the ways by which they can be included in the normal mainstream physical education. Thank you.